अस्सलाम वालेकुम, खबर हार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। खुदीन हज़रात, आज शो के आगाज में चलते हैं पुलिस स्टेशन। बिस्मिल्लाह जी। क्या हाल है जैदी साहब? मियाँ साहब और सुनाओ तबीयत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? नहीं, ठीक ठाक। नाम याद है ना? मुझे आपका डिस्ट्रिक्ट भी याद है, जैकबाबाद याद है। यार इतनी तेज मेमोरी, इसका राज क्या है? जाखरानी साहब, मुझे आप वैसे भी बड़े पसंद हैं। सुभान अल्लाह, आई लव यू मोर। ਜਾਖਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੱਗਦਾ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। करे ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। सिंध के साथ मेरा एक है ना जरा एक प्यार है, और वो भी इंटीरियर सिंध के। ਪਹਿਲੇ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? इंटीरियर सिंध में सिर्फ डाकू होते हैं। ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦੇ। पंजाब में थोड़े हैं। कच्चे का इलाका क्या है? ਪੰਜਾਬ ਕੱਚੇ ਚ ਆਉਂਦਾ। और ये छोटू गैंग क्या था? ये पंजाब में था। ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੇ ਪੇੜੇ ਖਾਣੇ ਕਿਸ ਦਿਨ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ। उस इलाके को याद करो ना, दाजल के पेड़े को। राजनपुर के पेड़े। ਰਾਜਨਪੁਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? राजनपुर का फर्नीचर है, राजनपुर के बकरे हैं, एक सलाब मशहूर है वहाँ। सेब, तो वही है। सलाब मशहूर है, दरीशक मशहूर है, मज़ारी मशहूर है। बल्कशेर मज़ारी पिछले दिनों इंतकाल कर गए। बड़े वज़ादार सियासतदान थे हमारे, साबिक वज़ीर आज़म भी। ही वॉज आवर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ओए होए, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਤੋਂ, ਸੈਲਰੀ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਨਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। हमें कैसे यकीन आएगा अभी? ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਨਾਲੇ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਪਕੜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਬਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫਾਰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਈ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰਾਗ ਰਚਾਇਆ ਏਮਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੇਸਾ, ਉਧਰੋਂ ਇੰਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਂ ਪਾਂ ਪਾਂ। ये तो बाकायदा संगत करता है। नहीं सर, अब वाकई लगता है कि खौफ खुदा पैदा हो रहा है इन लोगों में। ये क्या जाखरानी साहब की सोबत है? ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰ ਗਏ ਭਾਜੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਡੇ। ਹਾਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਜਾਲ। अच्छा, और वो दोनों किस चक्कर में है? ਭਾਜੀ ਚੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਬਲਬ ਲਾ ਲੈ, ਕਦੀ ਪਟੜੀਆਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ, ਨੱਟ ਖੋਲ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦਾ ਨੱਟ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ। बाबा जी, आप जरा बताएं ना अपने बारे में। ਖੜਾ ਓਏ, ਖੜਾ ਹੋ, उठ जा। ਉੱਠ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਬੋਕੇ ਦਾ। मोड़ की होया? ਬਸ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਗਏ। कौन? ਆ ਪਿਤਰੇਰ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ गए। तो वो तो पितरेर होंगे ना। तुम्हारी जमीन किधर गई? ਸਾਰੀ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਵੇਚ ਲਈਏ। वैसे ये भी बहुत ट्रेजेडी है देहाती इलाकों में। ये मुश्तरका जो खाते होते हैं ना, एक बुराई के रास्ते पे चलता है तो सारा सफाया कर देता है। ऐसे ही। तो अब फिर आप चोरियां करते हैं, कुछ शर्म करें। ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਮੁੜ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਕਾੜਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ? क्या ਇਹ ਹੀ ਚੋਰੀ ਸਿਖਾਉਣਾ। ये रावी के इलाके पुराने आसार हैं, आसार कदीमा है ना जो उकाड़ा के, वहां पे ये सिलसिला होता था, अब तो नहीं है। ਮਗਰ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਉਹੀ ਭਾਜੀ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਡੱਬੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਤੇ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਖੜਾ, ਦੂਸਰੀ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਖੰਗਿਆ, ਇੰਜਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। हालांकि पुराने जो स्टीम इंजन्स थे ना, जी जी। उनके बारे में कहते हैं कि ये बाकायदा जैसे ऊंची ऊंची सांस लेते हैं ना, उसमें वो एकदम जी जी सर। वो स्टीम रिलीज करते हैं ना। ਓਏ ਹੋਏ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਅਸਲੀ ਇੰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਆ कहने यार, याद ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇੰਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। मेरे घर के बिल्कुल करीब था रेलवे स्टेशन। आपने क्या याद दिला दिया सही, मेरे जहन में वो मंजर याद आ गया। आपका भी जिला एंड ट्रैक के ऊपर है। बिल्कुल ऐसा ही। ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੈ। आए हाय। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, जी। ਕਾਂਗੜੇ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ, तुम्हारे जड़ा वाले तो इंजन होता ही नहीं, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਠੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। और ठेले को खींचते घोड़े थे। ਘੋੜੇ ਵੀ ਸੀ। घोड़े खींचते हैं ट्रेन। अब वो खत्म हो गया सिलसिला। ਅਸੀਂ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਠੇਲੇ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਠੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ? मैंने ठेला चलाया हुआ है। वो कैसे आपने चला लिया? इसकी दिलचस्प बात भला क्या है क्या सर? कि ठेला जो पुश करता है वो पटड़ी के ऊपर भागता है। हाँ जी, ऐसे ही है। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। नहीं, पहले अच्छा पुश करके फिर बैठता है, रेस्ट करता है। वही। और आमतौर पे दो होते हैं, एक इस साइड पे होता है, एक इस साइड पे होता ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਸੁਭਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਠੇਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਠੇਲਾ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ? अच्छा सर, ये किलोमीटर के बाद रुक जाता है या कितनी देर दूर जाके रुकता है। इसके अंदर कोई इंजन नहीं होता, बिल्कुल ऐसे कोई ही है। फ्यूल नहीं होता, बंदे पुश करते हैं। और करीब करीब जो इलाके, ये आमतौर पे होता था रेलवे मुलाजमीन के लिए। जी।
जो वर्कर्स काम कर रहे होते थे ना, जी जी उनके लिए होता था। PWD हाँ जी। उनके लिए होता था, रेलवे वालों के लिए। और इसका काम बेसिकली मेंटेनेंस होता था। जो अजीज व अकारिब होते थे ना, जी। उन्हें पहले से कह दिया जाता था भी ठेले पे एक बंदे की या दो की गुंजाइश है, अगर चलो तो पास पास गांव होते थे तो लोग आते जाते इस ठेले पे चले गए, वापस आते हुए आगे गोश्त ले आए, कहीं से कुछ और चीज़ ले आई बाजार से। तो ये एक अजीबोगरीब और दिलचस्प कल्चर था। वो अब जहाँ बहुत कुछ चेंज हुआ है, इसके तो आसार कदीमा भी नहीं मिलते। भाई आपने बहरी जहाज भी चलाया हुआ है? मैंने स्टीमर चलाया हुआ है, वो बहरी जहाज ही होता। ਭਾਜੀ ਕਦੀ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ? ਏ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਲਾਹੌਰ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ? और की सारा छोटी मोटी चोरी कर ली थी। कदी बलाब ला लिया, कदी को लोहा ला लिया, को केल कांडा चुक लिया, कोई मुसाफिर सुते हुए थे टैची केस ला लिया, कपड़े चाल है। ਰਮੋਸ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਝਾਟਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋਗਰ ਲਵਾ ਲਏ, ਆ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਪਵਾਤੇ। मैं तो सोचता पिया हुणे कैरियर छड़ देवां, बड़ी बदनामी हो गई। वजह क्या हुई? ਵੇਖੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਪਦੀਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਭਾਜੀ ਵੈਸੇ ਕੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਪਈ। हाँ शुक्र है एक्सपोयर, जी ये min जानब अल्लाह है, ये ताज़ा हवा का झोंका है कि बात तो होने लगी है ना। अब करप्शन करने से पहले लोग 10 दफा सोचेंगे जरूर। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਜਰਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਕਰ। इधर आओ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ हाँ बाबा। ਕੀ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਨੇ। ਇਧਰ ਆਓ ਜਰਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਦੱਸ। ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਆ YouTube ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਸਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੰਗ ਦੀ ਜਾਣੀ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਖੰਗ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। बाबा जी आपको जो काम आता है वो सिखाएंगे लोगों को? वैसे ये भी होता है, जी लोग YouTube पे सिखा रहे होते हैं कि अगर आपके हमसाए के पास वाईफाई है और आपने पासवर्ड चुराना है तो मुझे फॉलो करें, मैं आपको तरीके। यानी बेशर्मी की इंतहा है। खयानत करना, चोरी करना, धोखा देना, वो ऑनलाइन सिखा रहा है। और ये सिलसिला अगर मिलियंस देखेंगे तो तुम्हें मिलियंस का गुनाह मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਸਾਇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੂੰ ਜੰਮੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਰਾਵੀਆਂ ਦੀ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ। और ये रावियन नहीं होते, रावियंस और होते हैं। ये समझता है कि कैसा अहमक है। रावियंस होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं। ਅੱਛਾ ਇਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨੇ। जी, ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀਅਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਮੁਕਾਓ। निस्बत यही है क्योंकि रावी बहुत करीब से बहता था, ਅਰੇ ਉਹਦੇ बहुत पास से गुजरता था। ਕਾਲਜ ਦੇ जी, क्योंकि 150 साल पहले बना था ये कॉलेज। ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਰਾਵੀ ਭਾਈ। गुजरांवाला दूसरी तरफ रह जाता है, ये नारोवाल से आता है। ਕਿਆ कहने हाँ, गुजरांवाला डिवीजन को टच करती है। डिवीजन। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? नारोवाल है ना, ਆਹੋ तो नारोवाल, सियालकोट, ये पूरा गुजरांवाला डिवीजन का इलाका है। तो नारोवाल सेक्टर से पाकिस्तान में दाखिल होता है और फिर घूमते घुमाते एक दफा फिर इंडिया चला जाता है। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪੜਾਓ, ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਗੇ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਜਾ, ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਜਾ। ਓ ਯਾਰ ਨੀਂਦਿਆ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? बाबा कितने बच्चे हैं तेरे? ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ 15 ਬਾਲ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। भाई वाह, ਓਏ ਵਲਾਦਮੀਰ ਪੁਟਨ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਓਏ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਲ ਦੇ ਸਾਲੇ, ਓਏ ਬੋਰਿਸ ਪਾਸਟਰ ਨਾਇਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। और कुछ कहना ना उसे। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਡਿਆ। कोई बात नहीं, बुजुर्ग है ना यार, उसे प्यार करो। ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਚੱਲ ਓਏ, ਅੰਦਰ ਚੱਲ। चलो। ਹੁਣ ਸ਼ਈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਲਾਂਤੀਆਂ ਨੇ ਖਲੋਤੇ ਇੰਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਊਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਉੱਥੇ 2 ਗਲਾਸ ਰੱਖੇ ਨੇ। उसमें रहते हैं ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ। ਬਾਹਰ ਆਦਰਾ ਹੈ ਇਹ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। यार, तमीज से बात किया करो। ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ। ਅੰਦਰ ਆ ਓਏ। देख क्या रहा है? चल। ओहो, सख्ती तो ना करें। जाखरानी साहब आपको जेब नहीं देता। आंखें दिखा रहा है साईं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲਾਂਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਟਿੰਡ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੁਰਾ ਕੇ ਵੇਚੀ। ओए होए, ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ डोंट इवन थिंक अबाउट। ये एक फिल्म का सीक्वेंस अभी कमाल है। लाइफ स्टिंक्स देखिएगा, फिल्म लाइफ स्टिंक्स। उसमें एक अंधे को ना, नबीने को भूखा मर रहा होता है, बिलियनर होता है, लेकिन इसने महीना पूरा गुजारना होता है फुटपाथ पे। अब और कुछ नहीं नजर आता तो फिर कहता है यार वो अंधा खड़ा हुआ है और काफी सारा
उसके करीब जाके खड़ा हो जाता है पहले, वो बंदा यूं पत्थर बन खड़ा होता है, थोड़ा सा और करीब आके खड़ा हो जाता है, देखता है, बीच में डर भी रहा होता है कहीं को मुझे और ना देख ले। जब और करीब आता है तो अंधा कहता है यू विश, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਹਾਏ ਹੈ। ਲਾਂਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਫਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤਰੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। बाकी उस वक्त तो फिर वो आपको हैवान बना देता है, जानवर बना देता ਹਾਂ ਦੱਸ ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ? ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨਸ਼ਈ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਢਾਲਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ ਲੱਭਿਆ ਓਏ। ਚੱਲ ਚੱਲ है। इस तरह की हरकत नहीं करनी, कोई फायदा नहीं होगा। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਸ਼ੀਨ। नहीं वो तो बता रहा है, तरोड़े को हो रही थी, दे दी। ਰੁੜਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁੜਕ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। हाँ ये जरूर है, बताओ किसे देखकर नशा लिया, ਹਾਂ उनको पकड़ो, असल चोर के पुत्र वो हैं। ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾ। नहीं मारते। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਸਰ, हाँ जी मैं कह रहा हूँ ना, अगर इन्होंने मारा, जाकरानी साहब अब दिस इज बिटवीन यू एंड मी। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਈਂ। ਦੱਸ ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਹੋ? ਹਵਾਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ ਆ। ਇਹ ਫੈਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥੱਥੇ ਦੀ। वो किधर है वो? ਉਹ ਫੜਨ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ। ਚੱਲ ਫਟਾਫਟ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸੀਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥੱਲੇ ਬੈ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। बादशाह ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ। ਹਰ ਡੱਬੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ 3 ਪੱਤੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਉਸ ਡੱਬੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। नहीं ये क्या तरीका है भाई? साईं पूरा डब्बा कसिनो बन जाता है, उसमें सारे प्रोफेशनल बैठे होते हैं। तो ये कैसे होता है आपकी नाक तले? भाईजान हमारी और रेलवे की काली भेड़ें ये सब मिलके करवाती हैं। साहब हफ्ता देता हूँ बाकायदगी के साथ, और जबरदस्ती नहीं करवाता, लोगों का शौक है, करवा देता हूँ, 4-5 इकट्ठे हो जाते हैं, हो जाती है गेम। करते क्या हो वैसे? पत्ते लगाता हूँ भाईजान। ਮੈਂ ਤਾਸ਼ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ये पता है अपने शिकार को क्या कहते हैं? जिसके साथ खेलते हैं ना, हाँ जी पत्ते लगाकर, आप बताइए क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेहनत। ये हमारी मेहनत है, मेहनत आ रही है, ओए मेहनत आ रही है। अच्छा ये ताश इससे पकड़ी गई है? ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ इसको ਜੀ। चेहरा लगा होगा। सर आपको कैसे पता? ले उन्होंने तो आजाद किया है। तुम्हें डबल सजा मिलनी चाहिए। बाकी एक तुम जुआ जो गैर कानूनी काम है, दूसरा इसमें भी चोरी, धोखा। अगर खेलना ही है, अगर ये जलालत करनी है तो स्पोर्ट्समैन की तरह खेलो ना, जुर्रत करके खेलो। और ताश पे चेहरा लगा होता है, एक एक पत्ता जुबानी याद होता है। ये बेशुमार तरीकों में से एक तरीका है, और कई लोग अपने माँ बाप की जमा पूंजियों से महरूम होते हैं। मैं हफ्ता देता हूँ बाकायदगी के साथ। ओए किसको देता है हफ्ता तू? आप लोगों के ही पेटी भाई होते हैं, उनको देते हैं भाई। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਅਫਜ਼ਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਛੱਡ ਦੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। अफजल ने अफजल कौन है? ओ भाई एसपी साहब दा खान साहब है। लो अब खुराक कहाँ जाएगा? वैसे यार एक गल है, चेहरा किथे है? चेहरा इनू कहंदे, इनू चेहरा कहंदे। बेवकूफ, सुई के साथ लगता है, नीडल के साथ। ये नीडल वर्क होता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह भाई, कमाल है सर, कमाल है, बहुत आला। ओए इनू छड़ दे, इनू फड़ ले। ਇਹ ਕੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਵੈਸੇ? मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें जराइम होते कैसे। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ? मैं क्राइम रिपोर्टर था। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੀ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਣਾਈ ਸਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜੁਬੇ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ, ਚੱਲ ਚੱਲ। वैसे यार फैसल तुम एक बहुत ही प्यारे ਓਏ ਤੂੰ आई लव दिस कैरेक्टर। ਅੱਛਾ ਅਸਲ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਸਾਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤੈਬ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਾਇਆ। ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੋਬਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਚੱਲ ਬੜਾ ਜੁਬੇ ਕਰਾ ਚੱਲ। बस बस बस। अस्सलाम जैदी साहब। अस्सलाम भाई। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਓਏ ਮਨਸਰ ਹੈ ਤੂੰ? जी जैदी साहब, ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਆਇਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਕਫ ਨਿਕਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ? ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਚੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਓਏ ਜੀ, ਛੱਡ ਦੇ ਓਏ, ਇੱਥੇ ਐਟਮ ਉਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੀਟ ਕਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈ क्लीन हो गया ਭਾਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। ਸੋਹਣੀ ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦੇ। तौबा बजाते खुद बहुत बड़ी लॉन्ड्री है। जैदी साहब अगर आपने तौबा कर ली, अल्लाह करे आप इस पे कायम रहें। मैं कायम रहूंगा। पता है आप जैसे लोगों की तौबा बिल्कुल स्मोकिंग छोड़ने वाली होती है। क्या छोड़ दी, कल फिर शुरू कर दी।
اور ایک دفعہ 2 دفعہ بار بار یہ کرنے سے اللہ کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتے آپ. وہ پھر آپ کو اس طرف لے جاتا ہی نہیں, آپ گناہ کے رستے پہ ہی چلتے جاتے ہیں. واہ، کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ. آپ اس پہ قائم رہیے گا اینڈ آئی ایشور یو کہ آپ کبھی بھوکوں نہیں مریں گے. آپ کے آنر میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ سوچیں گے یہ پیسہ جیسا کیا چیز ہے. لو ہے باجی نویں چیز، جی عطا کیجیے. نویں گل. ہائے ہائے، ٹربیوٹ ٹو استاد نصرت فتح علی خان. کیا کہنے وڈی دنیا. ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਸੁਰੀਲੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਹੈ. ਇਹ ਥਾਣਾ ਘੱਟ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਸਰ. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ. ਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਏ, ਵਸਣ ਚੋਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਥੱਲੇ. ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਏ, ਉਹ ਵਸਣ ਚੋਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਥੱਲੇ. ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਹਿਸਾਬ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਏ, ਵਸੇ ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜ ਥੱਲੇ. ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਹਿਸਾਬ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਏ, ਵਸੇ ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜ ਥੱਲੇ. ਲੋਕੀ ਚੰਨ ਤੇ ਪਲਾਟ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਓਏ, ਅਸਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਵੱਖੀਆਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ. ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਖੋਤੀ ਬੋੜ ਥੱਲੇ. واہ. काली काली भेड़ों को, काली काली भेड़ों को पकड़ो निकालो, काली काली भेड़ों को पकड़ो निकालो. यार अब यहाँ से करप्शन उठा लो, काली काली भेड़ों को पकड़ो निकालो. यार अब यहाँ से करप्शन उठा लो, काली काली भेड़ों को, काली काली भेड़ों 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 को आओ. تو دنوں رات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو دنوں رات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ. واہ اللہ خیر. ببو اور پنو کا موسٹ فیوریٹ سیگمنٹ. جی ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ, ہاں جی ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ہاں جی, اسے تنزن مٹھا کہتے ہیں. منہ کوڑا زہر کر اس دینا. کے بعد وہ منہ ایسا کر, بعض اوقات سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, اتنا کڑوا ہوتا ہے. اچھا جناب, آج الفاظ سارے وہی ہیں جو عام طور پہ غلط معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. جی جیسے رکیب. اب رکیب کون ہے؟ رکیب روسیہ. ਸਾਨੂੰ ਰਕੀਬ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਰੂਸੀਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ. رو چہرہ سیاہ, کہ سیاہ چہرے والا, کالے منہ والا. جی نہیں کہتے رکیب روسیہ. اچھا اچھا. ببو پلیز, یہ شو جو ہے نا, یہ صرف میں تمہارے لیے نہیں کرتا. مجھے لگتا ہے میں گھر سے صرف تمہیں پڑھانے آتا ہوں اور میں اسی کی سیلری لیتا ہوں. چلے جی رکیب روسیہ دس دیو کی. رکیب, رکیب ہوتا ہے نا, رکیب میرا وہ رکیب ہے, میرا رکیب ہے, میری مسابقت ہے اس کے ساتھ, میرا کمپٹیشن ہے, میرا رائیول ہے وہ. جی جی. لو رائیول ہو ایسا ہے نہیں. جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ رکیب وہی ہوتا ہے جس کا محبوب مشترکہ ہو, آپ کا اور اس کا ایک ہی محبوب ہو. ہاں جی, ہم یہی سمجھتے ہیں. تو بالکل یہ غلط ہے. رکیب انفیکٹ محافظ کو کہتے ہیں. گئے وقتوں میں جب محبوبہ گھر سے نکلا کرتی تھی نا, جی تو اس کے ساتھ دافع بلیات کے طور پہ 1-2 بزرگ ہوتے تھے کہ اس کا ماما, چاچا, تایا یا باقاعدہ محافظ ہوتے تھے, صحیح. باوردی محافظ. لفظ کی کیا ਭਾਜੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਏ ਨਾਵਰਨ ਦਾਫੇ ਬਲਈਆਤ. ਹਾਂ ਦਾਫੇ ਬਲਈਆਤ. ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਆ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਫੇ ਬਲਈਆਤ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ. اچھا یا رکیب کی طرف نہ آ جائیں. ہاں جی جی. آپ حیران ہوں گے کہ محافظ, رکیب, یہ نام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ہے. عبد الرکیب, یا رکیب ہو, یا رکیب ہو. عبد الحسیب, یہ میرے 2 دوست تھے, ایک میرا کلاس فیلو تھا اور ایک سینئر تھا اوکاڑا میں, راؤ حسیب اور راؤ رکیب. ویری بریلینٹ بوائز. اچھا جی, مشکور. میں آپ کا مشکور ہوں, شکر میں گزار. آپ کا بہت مشکور ہوں, میں آپ کا شکر گزار ہوں. جی انفیکٹ مشکور اس کو کہتے ہیں جس کا آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو ممنون کہنا چاہیے. جس کا ممنون کہنا چاہیے, جس کے آپ شکر گزار ہیں, وہ مشکور ہے. وہ ہے مشکور.
जैसे शाकिर है ना, शाकिर, तो शाकिर से बनेगा मशकूर, जालिम मजलूम, और खादिम मखदूम। कई लोग मखदूम खादिम को समझते हैं सही। कि जी मखदूम है, ये मखदूम वो है जिसके आप खादिम हैं। वाह। अच्छा जी, दफ्तर, ऑफिस, ऑफिस, वो मतलब ना बताएं मुझे जो मुरव्वजा है, जो मुस्तामिल है, हट के अगर कोई मतलब आता है उसका तो बताएं। ये पेपर की गड्डी को भी कहते हैं सर। जी, ये दरअसल रजिस्टर को कहते हैं। और एक दाखिले दफ्तर करना भी होता है ना, उसको भुला देना, उसको बिल्कुल साइड लाइन कर देना। हाँ जी, आपकी फाइल दाखिले दफ्तर हो गई है, यानी वो जो एक पलंदा है ना कागजों का, उसके अंदर डाल के नाउ योर फाइल रेस्ट्स इन पीस, इट विल नेवर सी द लाइट ऑफ डे। और ये सर दफ्तरी जो कहते हैं, दफ्तरी जो है वो गलत है, कि हम कहते हैं कि दफ्तरी है जो बाहर खड़ा है, ओए दफ्तरी है ये, इसको बुलाओ। ये आपके मुलाजमीन है दर्जा चहारम के, दफ्तरी, फराश, वो तो मेरे ख्याल दर्जा अव्वल का है। दफ्तरी वो है जो दफ्तर के अंदर इसको मेंटेन करता है। सही है। The one who maintains your files, your archives, your documents, he is daftari, not the one who waits outside, sits on the stool. वो तो पीएन है, ये अंदर दा बंदा जी। अच्छा, पीएन का लफ्ज जो है वो नेटिव स्पीकर्स नहीं यूज करते। हाँ, नेटिव वो The नहीं closest करते word is porter जी। पोर्टर या ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय बड़ा तवील है, हो जाता है। पीएन का एक ये पियोन कहते हैं, कराची में अक्सर पियोन। इंडियन तो ज्यादातर जी, इंडियंस भी फिल्मों में पियोन कहते हैं जी। तो सर फिर क्या वजह है कि ये वर्ड ऑफिस के तौर पे मशहूर हुआ? हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। कि किसी के घर लोग आए होंगे ना, तो बेगम साहबा ने कहा होगा ये तो सुबह से अपने घर में ही दफ्तर खोल के बैठे हुए हैं, 5-6 उसने बुक्स खोली होंगी, हाँ जी, दफ्तरी काम कर रहा होगा। तो बब्बू जैसा सुन रहा होगा, उसने कहा होगा कि दफ्तर खोलना का मतलब है कि इसने अपना ऑफिस बनाया होगा जी। और वहां से बात वायरल होगी। जी, आप कुछ कह रही हैं? तो सर चपड़ासी किसको कहते हैं? चपड़ासी, चप लेफ्ट है, रास्त राइट है। वाह। यानी कि मैं दस्ते चप, दस्ते रास्त। आप मेरे दस्ते रास है। वो दस्ते चप है तुम्हारी, वो रास्ते, तुम दस्ते रास्त हो। अच्छा, राशिया। अच्छा, राशि भी गलत है बाय द वे। भाई ने वैसे ही किया। नहीं, उन्होंने लाफ्टर लिया। राशि का मतलब क्या है? रिश्वत लेने वाला। रिश्वत लेने वाला नहीं, दरअसल रिश्वत देने वाला है राशि। लेकिन मुर्तशी वो है जो रिश्वत ले रहा है, राशि जो रिश्वत दे रहा है। लेकिन अब ये गलत उलाम हो गया है। गलत उलाम हो चुका है। सर आज का शेर अभी आधा सेगमेंट पड़ा है, ऐसे सुना दो। लेकिन फिर सेगमेंट अभी रहेगा, ये ना कहना कि जी शेर सुना दिया चुके। नहीं, साड़ी जरूरत है। नहीं। अच्छा जी, आज का शेर है इमरान हैदर का, बहुत खूबसूरत शेर। नए शायर हैं, कहते हैं घेर लेती है सरे शाम उदासी ऐसे, घेर लेती है सरे शाम उदासी ऐसे, गांव की आखिरी बस छूट गई हो जैसे। अच्छा, टिक टिकी, हाँ, देख ही जाना। देखिए जाना। टिक टिकी का बुनियादी मतलब है, ये देखो, ये जो ये कैमरामैन, कैमरामैन नहीं, कैमरे के नीचे ट्राइपॉड, ये जो है ये ट्राइपॉड। इतना लता टिक टिकी 3 लातों वाला, 3 टांगों वाला ट्राइपॉड। और ਇਹ ਜਿਹਾ ਗੂੰਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਬ ਗਲਾਟ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। सर ऐसी आवाज चिड़ियाघर से आ रही थी, सुबह सुबह शेर की आवाजें आ रही थी। 5 मिनट पहले इत्थों आ रही थी। अच्छा सर, ये टिक टिकी का आंखों से क्या ताल्लुक है? ये 3 जो टांगे हैं, आपने किसी को एक टिकटिकी से बंधा हुआ देखा है? क्या कह रहा है? बना के दसेंगे, वादा बढ़ाया, देखेंगे आगे। नहीं, एक बेचारा जिसको सजा मिल रही है, कोड़े पड़ रहे हैं, तो वो टिकटिकी से बंधा हुआ है। सर एक जेल च भी होती है टिकटिकी, जिदे तो वही होती है ना। इसे अंग्रेजी में विपिंग पोस्ट कहते हैं, विपिंग फ्रेम भी कहते हैं, विपिंग स्टैंड भी कहते हैं। विपिंग जो कोड़े मारे जाए, और दूसरा टिकटिकी लगाकर किसी को देखना, यानी बांध कर, आंखें बांध कर किसी को, यानी डिफोकस ना होने पाए, हिलने ना पाए, गौर से देखते रहना।
उसको भी टिकटिकी बांधना कहते हैं। जफर साहब का एक शेर है टिकटिकी से मुताल्लिक, जरा गौर सुने। कहते हैं कि टिकटिकी बांध के मैं देख रहा हूं जिसको, टिकटिकी बांध के मैं देख रहा हूं जिसको, ये भी हो सकता है वो सामने बैठा ही ना हो। बहुत अच्छे। वर्चुअल रियलिटी क्या है? ये जो सेट लगे होते हैं, ये दुनिया एक वर्चुअल सेट है। ये जो आप समझते हैं ना कि ये है, ये नहीं है। इसके अंदर फलसफा क्या है? ये किसी दिन वो भाईजान जो पीछे बैठे हैं ना, जो फिलोसोफर हैं हमारे दोस्त, उनसे पूछिएगा कि टाइम जीरो कैसे होता है, E इज इक्वल टू mc² क्या होता है। और ये आपको बड़े मतलब मेरा ख्याल महीना लगेगा बब्बू, तुम्हें तो खैर साल लगेगा समझाने में, लेकिन आम लोगों को महीना लगेगा, वो समझा देंगे। मैं समझांगा तो साल लगेगा ना। तो पुन्नू इटर्निटी है कि मैं समझना भी नहीं चाहता, नंगन दे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1-2 दफा हुई इस मौजूद ਤੇ ਗੱਲ, बड़ी इबरत हुई भाई। पढ़े लिखों के साथ बैठ के हमेशा इबरत होती है बच्चे। कई बार होया 15 मिनट बाद उन्होंने कहा हाँ जी मैं नहीं हैगा। मेरे ना तो गल शुरू करे, मैं फौरी कह देना मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जाहिर है कहीं तुम्हारे इल्म में इजाफा ना हो जाए, नसीब है दुश्मना। इजाफा और गल हुंदी है। घड़ी रुकने को है, जंगल में आहू डरने वाला है। जमीन करवट बदलने के लिए तैयार हो जैसे, वाह वाह वाह। घड़ी रुकने को है, जंगल में आहू डरने वाला है। बादशाह ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। जवान लड़की के साथ जो बड़ी बूढ़ी खातून जाती है उसको शेपरोन कहते हैं ना। शेपरोन नहीं, जवान लड़की के साथ ही नहीं, किसी भी बच्चे के साथ भी अगर कोई गवर्नेंस है, इवन आपका जो शोफर है वो शेपरोन के तौर पे जा सकता है, जो उसके साथ जा रहा हो, उसका केयर टेकर। जरूरी नहीं है लेकिन यूरोप में भी ये रिवाज था ना पहले, कदीम यूरोप, कदीम सोसाइटी में लड़की है तो अकेली ना जाए। वो लड़कियों का खास तौर पे, वो तो वहां तो फिर और लड़कियों का डेब्यू होता था। अब डेब्यू कहते हैं ना कि टेस्ट डेब्यू है उसका। अब डेब्यू होता था जब लड़की की मुंह दिखाई होती थी, उसकी रूनुमाई होती थी सोसाइटी में। पहली दफा जवान होने के बाद लड़की को पहली दफा प्रेजेंट किया जाता था सोसाइटी में। ये उस दौर की जो फ्यूडल सोसाइटीज थी, वो उसका डेब्यू था। और जिसका डेब्यू हो रहा होता है वो कौन? डेबुटांट। डेबुटांट। और ये कुछ समझ आ रही? हाँ जी बहुत। अच्छा जी, कमीना ऐसी गल है बब्बू की तरफ से। अच्छा जी कमीना। अरे ਤੁਸੀਂ ਬੱਬੂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਯਾਰ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਚੁੱਪ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਮੀਨਾ ਕਹੋ। इन्हें चेक ले गया चुप दे। एक्चुअली इसका मतलब तो होता है ना छोटा, मीन, जी घटिया जी। घटिया, लेकिन असल मतलब है कमीगाह में छुपा हुआ। कमीगाह जिसमें दुश्मन घात लगाकर छुपते थे, जी, तो उसमें छुपा हुआ, उसको कमीना कहते हैं। यार ये तो तभी तो घटिया, छोटा और उसके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੋਆਂ ਦੇ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਗਸਲਾ ਤੋਂ तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थे। वेलकम बैक। जी फारिया, खबर है कि खाने की नीयत से इंजीनियर को अगवा करने वाले आदमखोर गिरफ्तार। सर ये कहाँ का वाकया है? बर्लिन, जर्मनी। अरे वाकई ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। वो कहता तो है, और फिर जब पुलिस आई तो घर से बहुत बड़े बड़े छुरे, बुगदे और एक हैंडगन निकली। तो सर ये तो सेम उसी तरह है जैसे बखर में लोग पकड़े गए थे। जी नहीं, वो तो सर मुर्दे खाते थे ना, ये तो जिंदा लोगों को खा लेकिन उनके घरों में भी तो ऐसी चीजें बरामद हुई है ना। वो औजार जो आमतौर पे कस्साबों के पास होते हैं, मतलब हम घरों में बुगदे नहीं रखते। अगर रखते हैं तो उसकी कोई वजह होगी। एक टोका होता है, टोका तो कुछ भी काटने के लिए हो सकता है। बुगदा प्रॉपर गोश्त काटने वाले के को काटने, मिन्स करने, छोटे टुकड़े करने में होता है। ਸਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਫਸਿਆਤੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ, ਵਰਨਾ ਜਾਨਵਰ भी खा सकते हैं ਉੱਥੇ। हर गोश्त मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अगर आपके मुंह को लग जाए, जैसे ये बब्बू एंड कंपनी छोटा नहीं कहते, छोटा
मुंह को छोटा लग जाना। तो सर ये शख्स बच कैसे गया? इसने फोन कर लिया किसी तरह से, फोन हो सकता है इसके पास हो। तलाशी लेते हुए आमतौर पे शक नहीं किया जाता कि इसके पास एक फोन और भी होगा। कहते हैं लाओ फोन दो अपना। कभी आपने सुना है कि लाओ अपने फोन दो? अपने फोन एक आदमी से नहीं कहा जाता, अपना फोन दो। फिर मैंने बहुत सी फिल्मों में, नॉवेल्स में, एक बड़ा इंटरेस्टिंग नॉवल है बोर्न आइडेंटिटी, उसमें वो बचता ही इसलिए है कि वो उसको अपनी तरफ से मार के फेंक देते हैं कि उसका पिस्टल विस्टल छीन लिए, तो उसका एक छोटा रिवॉल्वर उसकी जुराब में छुपाया होता है उसने, उसे निकाल कर फिर उससे बचता है, उससे बंदे मार के निकलता है। तो हो सकता है कोई एक फ़ोन उसके पास छुपा रह गया हो। भाई ने इधर चाह पी यार, मैनू अल्लाह ने बचाया। अच्छा, ओहो, ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਫੋਨ ਬਚਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਫੋਨ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਜਰਾਬਾਂ 'ਚ ਲੁਕੋਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ। ਹਾਂਜੀ, नहीं अंदर कोई फोन ना होंदा, मैं चब जाना है। ये हमारे सरदार हैं और ये गोश्त बहुत पसंद करते हैं इंसान का। और ये किस कदर कभी शक्ल है इसकी। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਥੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੰਘਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਲੱਗਦਾ, नेड़े कर दे मुंह वड्डा हो जाता। वो फिश आई इफेक्ट होता है। शुक्र कर तूने कोई नेक काम किया जो बच गया, वरना आज तक आफ्ताब साहब हमसे कोई बच नहीं सका। भाजी एडे एडे बुकदे ना को एडियां एडियां वड्डियां छुरियां खल्ला लाउण वालियां मेरे सामने बह के प्याज कट्टण लग पे, मिर्चां दा मसाला, एक बंदा धनिया कुट रहा हो। मैं उठ के पूछा, मैं कहा बनाउण की लगे हो? कहंदे छोटा। इन्हां ते किन्नी देर आठा बनया रहा मेरे वेख के। मटन मैन, मटन मैन नहीं पता ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚੋ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟੀਦਾ। और इसका मोबाइल किस तरह बच गया? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਹੈਗੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਰਾਜ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਤੋਂ ਚੋਰੀ। क्या वजह क्या है? ਫੋਨ ਸ਼ੋਨ ਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, किसके फोन आते हैं? ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ। तो बेगम को क्या एतराज है बिजनेस फोन पे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿਸੋਂ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਵੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਅਰਚਾ ਕੱਢ ਲਈ, ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋ, ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਅਦਰਕ। ਇਹ ਸਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ऑलिव ऑयल ਚ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। मतलब अच्छे तरीके से पकते हैं ना आप। नहीं, ऑलिव ऑयल तो बड़ी बात है, इसका मतलब तुम्हें शान शान ट्रीटमेंट दी जाए। ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਮਹਿੰਗਾ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਨਸੀਬ ਭੈੜੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਮਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੂਨ, ਮੈਂ 2 घंटे और बेहोश रहा। अदालत में मुकर गए, कहते जी हमने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने भी रिमांड एक्स्ट्रा मांग लिया पुलिस ने। तो कोई नहीं, इनका बाप भी मानेगा। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋ ਬਾਜ਼ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਕਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਦੀ ਐਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕੀ ਦੱਸੀ, ਐਡਾ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਇੰਜ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਵਾਦਾ ਕੱਲਾ। तौबा कितना मनहूस, और ये भी कितना बुरा लग रहा है। ये ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? लाल सा रुमाल बांधा हुआ है। इधर देखो भाई, ए पिछला एडा माड़ा है। इसने 6-6 फुट का आदमी भी गिराया हुआ है आफ्ताब साहब, इसको कम ना समझिए। ये तो क्या करता है, इसके पास हथियार होता है कोई? मैं उसकी पिन्नी पे दंदी काटता हूँ। इस बाबे ने मैंने दंदी वड्डी भाई, मेरा हासा निकल गया। एडी लीकोट वाली दंदी, मैंने जलून हुई पूरे जिस्म पे। मैं तो चपेट मारी, मैं कहा दंदी ये नहीं वड्डी थी। मैं दंदी वड्ड के विखाई, चीखा मारे। ये मैंने 10 मिनट और ना खाते, मैं इन्होंने खा जाना। कोई ऐसा शिकार बताओ जिसने आप लोगों को तंग किया हो बहुत ज्यादा। ओह तौबा, नशे ही चुक लिया किते नसी, लानत ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ। ਇੰਨੀ ਚਰਸ ਪੀਤੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ 2-2 ਬੂਟੀਆਂ ਹੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੌ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਲਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। वो तो तुमने पका के खा लिया था। ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭੈਣ, ਅੱਧਾ ਹੀ ਪੱਕਿਆ ਸੀ ਸਾਲਾ, ਅੱਧਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਏਰੀਆ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹ ਪਕਾਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, किस उम्र के शिकार को खाते हो? 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਕੁੜੀਏ,
ਕਿਉਂਕਿ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਸ਼ਤ ਚੀੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। बाबा वगैरह अगर हाथ लग जाए ਹੈ कोई बाबा बुढ़ा बुढ़ड़ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਮਾ ਰਿਹਾ। ਤਿੰਨ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲੰਗੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ। ਉਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਨਾ ਦੌੜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਾ ਭਾਰ ਪਈਏ, ਸੂਈਆਂ ਚੁੰਬਨ। ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੂੰਗਾ ਖਾ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਚਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਖੁਸਰਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 6 ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थे। वेलकम बैक। दिनों रात आज का गाना हमने फिल्म सुल्तान से लिया है। नहायत शानदार कंपोजिशन नज़ीर अली की, हज़ीन कादरी के लिरिक्स हैं और आवाज़ का जादू जगाया मैडम नूरजहां ने। पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज़। दिलदार सदके लखवार सदके, दिलदार सदके लखवार सदके, तेरा कर्म होया होया प्यार सदके, दिलदार सदके लखवार सदके, दिलदार सदके लखवार सदके, तेरा कर्म होया होया प्यार सदके, दिलदार सदके लखवार सदके, दिलदार सदके। मुलाकात हुई गलबात हुई, दिन ईद तेरा तो शब रात हुई, मुलाकात हुई गलबात हुई, दिन ईद तेरा तो शब रात हुई, सरकार सदके लखवार सदके, सरकार सदके लखवार सदके, तेरा कर्म होया होया प्यार सदके, दिलदार सदके लखवार सदके, दिलदार सदके। सुल्तान आँखां मेहरबान आँखां, जे तू मन लवे ते जिंद जान आँखां, सुल्तान आँखां मेहरबान आँखां, जे तू मन लवे ते जिंद जान आँखां, गमखार सदके लखवार सदके, गमखार सदके लखवार सदके,
तेरा कर्म होया होया प्यार सदके दिलदार सदके लख बार सदके दिलदार सदके तक चन गबरू हंस पे अथरू चावा मेरे ने बन ले घुंघरू तक चन गबरू हंस पे अथरू चावा मेरे आने बन ले घुंघरू झनकार सदके लख बार सदके झनकार सदके लख बार सदके तेरा कर्म होया होया प्यार सदके दिलदार सदके लख बार सदके दिलदार सदके लख बार सदके तेरा कर्म होया होया प्यार सदके दिलदार सदके लख बार सदके दिलदार सदके Bravo! Bravo!